Hi, good morning, students. In my last video, you must have seen regarding the characteristic features of the phylum Porifera. Here is the diagram of the body wall of Porifera. We had discussed that the Porifera is the group of animals having porous body. This is the pore called ostia, and through this pore the water enters into the body cavity. The body is two layered, and the outer or ectodermal layer has a specialized cell. It is the pinacocyte, and the inner layer, endodermal layer, has a specialized cell, that is conocytes. And apart from this, these two layers of cells are held together by a non-cellular mesenchyme. Here we find spicules like structure. जैसा हमने बताया था कि ये जो कैल्केरियस स्पिक्यूल, सिलीशियस स्पिक्यूल या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से बने हुए प्रोटीनेशियस स्पिक्यूल्स इसके बॉडी में पाए जाते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है दैट इज़ सिलेंटेरिटा, और सिलेंटेरिटा के मेंबर में हम यहाँ हाइड्रा को देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एसेक्सुअली इस बड का प्रोडक्शन हो रहा है, और यही बड थोड़ा सा और बड़ा होकर क्या करेगा कि बडी वॉल से मदर्स बडी से डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होकर के एक इंडिपेंडेंट हाइड्रा की तरह बिहेव करना शुरू करेगा. यहाँ पर हमें ये बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं जो बेबी हाइड्रा को प्रोड्यूस कर सकते हैं. यहाँ हम एक दूसरे एनिमल को देख रहे हैं जो सिलेंटेरिटा को ही बिलोंग करता है. इट इज सी एनिमोन. और जहाँ तक सिलेंटेरिटा की बात है तो सिलेंटेरिटा इज़ द फाइलम. It is a little advanced if we compare it with the previous phylum Porifera, and the following are the important characteristic feature. The organism belonging to this group are diploblastic, that is, body is developed from two germ layer, ectoderm and endoderm. Presence of a coelenterone. This is the cavity opening. Here are the tentacles, and these tentacles enclose an opening that is called the mouth of the organism. And here inside the body there is a blind sac. The single opening is there, and this opens here. So this cavity inside the body of a hydra is known as coelenterone, and hence the name Coelenterata. The coelenterone is known as the gastric cavity or the alimentary canal of the organism, and this is called the blind sac plan. Blind sac, that is, there is only a single opening, no the other opening is there. Usually in the alimentary canal you have seen two openings, one for the entry of food material and the another for the exit of waste material. But such opening known as anus is not present here. The alimentary canal is incomplete and hence called the blind sac plan. Body has tissue level organization, and the animal is radially symmetrical. Radially symmetrical, here you can see here, you can draw here a circle, and on this circle, on any radii, we can divide the organism into two equal halves. Such organisms which can be divided into two equal halves on any radial plane is known as radially symmetrical. The organism has a specialized stinging cell present in the body called nidoblast. ये जो टेंटिकल्स होते हैं, these tentacles are meant for catching the food material, और आसपास आने वाला कोई भी जो प्रे है
इसके टेंटिकल्स में मौजूद ये नीडोब्लास्ट सेल स्टिंगिंग सेल होता है और इस स्टिंगिंग सेल के सहारे ये अपने प्रे को पैरालाइज कर देता है एंड देयर आफ्टर कैचिंग द प्रे विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स इट इज़ टेकन इनसाइड द ओपनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो ओपनिंग इसके एलिमेंट्री कैनाल में या गैस्ट्रिक कैविटी या सिलेंटेरोन में खुलता है, तो वहाँ पर से ये अपने प्रे को अंदर लेता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है। चूँकि इस ऑर्गेनिज्म में नीडोब्लास्ट जैसे स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, इसीलिए इस पूरे ग्रुप को हम निडेरियंस भी नाम देते हैं। Body wall has two layers, the ectoderm and gastroderm, held together by non-cellular gelatinous layer called mesoglea. बॉडी में दो अलग अलग जो लेयर हैं एक्टोडर्म और गैस्ट्रोडर्म के, इन दोनों लेयर्स को जोड़ने के लिए यहाँ पर नॉन सेलुलर लेयर मेसोग्लिया का होता है। ऑर्गेनिज्म इज एसिलोमेट एंड एमोनोटेलिक। एमोनोटेलिक का मतलब है कि यह अमोनिया जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करता है अपनी बॉडी से, हेंस द एमोनोटेलिक। और एसिलोमेट हम इसलिए कहते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म में सिलोम जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू बॉडी सरफेस। और इसमें जहाँ तक रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का सवाल है, तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन ये बॉडी सरफेस से होता है। बॉडी सरफेस का मतलब कि इसके बॉडी वॉल में दो ही सरफेस है, एक तो बाहर का सरफेस जिसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, इसमें जो सेल्स होते हैं वे, और दूसरे सेल का जो लेयर है वो इसके सिलेंटेरोन की तरफ होता है जिसको हम लोग एंडोडर्म या गैस्ट्रोडर्म कहते हैं। और ये दोनों ही लेयर बीच में नॉन सेलुलर लेयर से आपस में जुड़े होते हैं। तो चूँकि इस ओपनिंग से होकर के वाटर अंदर आता रहता है ऑर्गेनिज्म के बॉडी के भीतर, तो भीतर के जो लेयर में सेल्स हैं वे, और बाहर ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है तो बाहर भी पानी के टच में होता है और वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन इसके बॉडी के हर एक सेल को अवेलेबल है। इसीलिए रेस्पिरेशन जो है वह सेल के सरफेस से हो जाता है और एक्सक्रीशन भी सेल के सरफेस से ही होता है। ऑर्गेनिज्म इज़ फाउंड इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज़ पॉलिप एंड मेड्यूसा। पूरी लाइफ साइकिल में ये ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, एक को हम लोग पॉलिप कहते हैं जबकि दूसरे को मेड्यूसा कहते हैं। पॉलिप जो है ये सॉलिटरी या कॉलोनियल फॉर्म में हो सकता है और सेडेंट्री लाइफ लीड करता है, फिक्स्ड रहता है एक जगह। वाइल मेड्यूसा आर फ्री स्विमिंग फॉर्म, जबकि मेड्यूसा जो है ये फ्री स्विमिंग फॉर्म है और रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बोथ, यानी सिलेंटेरेटा के मेंबर्स सेक्सुअली और एसेक्सुअली इन दोनों ही तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करते हैं।